Nearly 13% of the population in urban India defecate in the open. In the capital Delhi, while there are no precise figures, the number of those defecating in the open as they don't have a toilet is substantial. Now growing aspirations are creating a huge demand for toilets, and Prime Minister Narendra Modi has promised to build 100 million toilets across the country. पहले शौचालय फिर देवालय। The irony, however, is that existing community toilets are falling into disrepair. A few years after they are built, they are not fit for use. This is the fate of a 5-year-old community toilet that has no operation and maintenance plan. It is decrepit and broken and appears to be fit for demolition. Over 22 of the 40 toilet seats are non-functional. But let's begin at the beginning. This is Shalu's life as she knows it. The 21-year-old is a student of BA second year at Delhi University School of Open Learning. Home is a 6 feet by 10 feet room at Block 18 Kalyanpuri, one of the oldest Jhuggi Jhopri clusters in East Delhi. It's a space shared by 5 adults, her parents who work as tailors and her 2 brothers. There's a bed, a cooking area, but too small to build a toilet that the family needs. They use a corner to bathe and urinate. A hole in the wall is an outlet to the open drain outside. Only 45% of Delhi has sewage connection. कोई नहीं, घर में दरवाजा बंद करके कोई नहीं होता। अगर होते हैं घर में तो उन्हें बाहर निकाल के हमें टॉयलेट वगैरह जाना होता है। ये छोटा सा जगह, ये मतलब एकदम किचन के पास जो जगह है। परेशानी तो होती है, इसी जगह है तो उसी में सब कुछ करना पड़ता है। The 1200 odd families living in the cluster were earlier served by a community toilet, but was closed down by the Municipal Corporation of Delhi 7 years ago. To access a toilet now, they walk 1 kilometer to Khichripur. हम प्रेग्नेंट थे तो मैं चल नहीं पाती थी, मेरा हाथ पैर में सूजन हो गई थी। जैसे हम बैठ के जाते थे, मुझे चक्कर आते थे जाते जाते। अगर रात में भी हमें जाना होता तो किसी बड़े को साथ लेकर जाना होता है, दूर पड़ जाता इसकी वजह से। With no toilets nearby, children defecate in the open drains outside the homes, the fecal matter creating an unhealthy environment for the residents. The toilet complex at Khichripur compounds their indignity. Dirty and poorly maintained, it fails to meet appropriate standards. There are no dustbins, no system to flush. Nearly 10 of the 40 toilet seats are clogged, but they are neither cleaned nor kept locked to users, aggravating the unsanitary conditions. With the toilet complex closed between 10 p.m. and 5 a.m., many users continue to resort to open defecation in the forested area nearby. हमारे केवल साफ सफाई का काम है और हमारी इसमें जो भी कमी होती है दूसरे डिपार्टमेंट करते हैं। वर्क्स डिपार्टमेंट है हमारे एमसीडी में ही, उनका हमारे बराबर में दफ्तर है, उसमें वो लोग बैठते हैं, उनको हम बताते हैं भाई इसमें ये कमी आ गई है, इसमें वाइट वाश होना है, या इसकी खिड़की टूट गई है, या इसकी सीटें टूट गई हैं, उनको वो लोग ठीक करते हैं। और बताओ। अच्छा, तो वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, कर देते हैं, ऐसा नहीं है, कर तो देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा करने में टाइम लग जाता है। अभी मैंने देखा महिला में बहुत डर्टी थे। नहीं, उसमें कई सीटें ऐसी हैं जो बंद पड़ी है ना, वो हमने खूब कोशिश करवाते हैं। ये बेचारे यहाँ सैनिटरी गाइड ने बहुत मेहनत करा, लेकिन वो खुलती नहीं। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं वो अपने उल्टे सीधे कपड़े डाल देती हैं, खूब मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो बंद हो जाता है। तो आप लोगों ने डस्टबिन की तो सुविधा बना सकते थे ना? डस्टबिन की तो जैसे आपको पता है मैडम, आपको मालूम होगा 4-5 साल पहले बड़े बड़े डस्टबिन आए थे दिल्ली में, देखे होंगे आपने। सब लोगों उनको उठाकर ले गए, जला दिए, कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन उसका सोल्यूशन तो होगा। अब सोल्यूशन अब बताइए, यही समस्या है। अब वो पर्सनली तो नहीं रखवाई जा सकते। मान लीजिए 150 का मैं ही ला के रख दूँ, उसे कोई सवेरे उठवा ले जाएगा। At another toilet complex in Kalyanpuri, sanitation workers too give us a glimpse of the last mile operating and maintenance problems. इसी वक्त हम लोग खोलते हैं इसको खुद आके, बाहर पानी आ जाता है, बाहर पानी को हम निकालते हैं, इसको
हम धुलाई करने जाते हैं, बहुत से बंदे यहाँ पे ये चीज़ें करते हैं, स्नैक पीते हैं। हम वहाँ धुलाई करते हैं तो वो कहते हैं रुक जाओ, पानी डालने दो, रुक जा, लड़ने को तैयार हो जाता है। हमें डर लगता है लड़ाई से। देखो उनके पास रहता है उसका, एकदम मार देगा हमारे को, तो हम चुपचाप रहते हैं, वहाँ नहीं करते धुलाई। फिर मैडम एक हाथ जोड़ी करो मेरी, मैं हाथ जोड़ूँ भाई, यहाँ किसी को चौकीदार रख दो। परेशानी इधर करके जाऊंगी सफाई, इधर लोग लैटिंग कर जाएंगे, बाहर सारे में गंद मचाती हैं। हाथन चटाऊँ, कुछ औजार नहीं, का चटाऊँ। एक स्टील की प्लेट है, जब मट्टी सट्टी घेरती हूँ झाड़ू से, जब हम प्लेट में उठा के जब बाल्टी में धरती हूँ अपनी में। मैडम सारा पैप काट दिया, सब चोरी करके ले गए, सारा टूटा पैप पड़ा, हम सारी भीग जाती हूँ मैं तो। लैटिंग धोने का बुरश नहीं, लैटिंग धोने की झाड़ू नहीं, बताओ क्या था हाथन से धोऊं, कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ स्वच्छ भारत अपने हाथ में होता है, ऐसे वो कोई बात नहीं। अगर हम अपनी सफाई खुद रखेंगे तो शायद साफ तो रह सकता है। Women of the community have been going from pillar to post for nearly 7 years, demanding a clean and functional toilet complex near their cluster. The cause brought them together to form the Mahila Pragati Manch. लोग सब चाहते हैं क्योंकि बीमारियां बहुत हो रही हैं। एक छोटी सी फिल्म बनाई, फिर एलजी के पास बस्ती के लोग ही गए, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी। प्लानिंग कमीशन में भी यही लोग गए, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम रखी, सोल्यूशन भी बताया। हमारी माता बहनें जंगले में जाती हैं और वहाँ भी बदतमीजी होती है, हम झुग्गी झोपड़ी वाले इंसान नहीं है। एलजी भी वो देख नहीं पाए, थोड़ा सा देखा और उन्होंने कहा बंद कर दो। About a year ago, DUSIP, or the Delhi Urban Shelter Improvement Board, started construction on a toilet complex with 52 toilet seats near the Block 18 cluster. 26 seats are for women and 26 for men. The Munch is monitoring the construction, keeping a check on materials and giving feedback to DUSIP. जेंट्स लेडीज़ के एक तरफ हो गए दीवार सामना सामने, तो उसको लिए भी हम लोग मांग किए हैं भाई हम लोग के बीच में दीवार चाहिए, पर्दा चाहिए। अब सामना सामने बैठेंगे तो अच्छा ना लगेंगे, तो इसलिए बोले तो कह रहे हैं कि ठीक है लग जाएंगे गेट। एक मैंने लेडीज़ के लिए कूड़दान चाहिए, जैसे थी वाला कपड़ा रहता है ना, उसको फेंकने के लिए चाहिए। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये जो पीछे की दीवारें हैं इनके जंगले तोड़ के जेंट्स अंदर आ जाते हैं। लेडीज़ दरवाजा खोलती है तो उसको दोष लग जाता है कि यहाँ से जाते हैं बाहर, रास्ते में बहन बेटी खिंच जाती हैं। इतना हमें सहूलत मिला है कि बनने के बाद में हमारे दिल को खुशी हुई है, मगर दुख यही है कि यहाँ पे अभी थोड़ी दीवारों की और यहाँ पे जो है पुलिस की अवस्था ज़्यादा है। However, the question is, once this toilet complex is operational, will it go the way of old ones? Construction of new toilet complexes like this one is only one half of the sanitation story. The other half is operation and maintenance. Despite its obvious significance, operation and maintenance have not received the necessary focus. Government agencies like DUSIP and MCD have no new solutions for revitalizing the public delivery systems. At Kalyanpuri, DUSIP has taken tentative steps to partner with the community in the monitoring and supervision of toilets, but the engagement is yet to take off in a meaningful long-term manner. There are also questions about the financial viability of existing policies for maintenance of toilet buildings and sewer connections, for provision of electricity and water supply, for hiring caretakers and 24-hour cleaning staff. तो हम कहते हैं कि सरकार उसके लिए बजट बनाए, कभी बजट नहीं होता इसके लिए। दूसरी बात, अवेयरनेस करे, लोगों की भागीदारी करे। जब तक लोगों की भागीदारी इसमें नहीं होगी तो ये अकेले सरकार के बस का भी नहीं है।